भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 21 से 30 तक। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवल कर्म कुर्वनाप्नोति किल विषम यदृच्छालावसंतुष्टो द्वन्वातीतो विमत्स्र समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस ये ज्ञायाचरत कर्म समिग्रन प्रविलीयते ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधना दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नां परे यज्ञम यज्ञेनवोपजुह्वति श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये सहमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ये ज्ञास्त्वयज्ञा योगे ज्ञास्थाप स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संचितव्रता अपाने जुह्वति प्राण तथाप प्राणापानेक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रयना अपरे नेताहारा प्राणाप्राणेषु जुह्वति यज्ञविदो यज्ञक्षपित्कलंशा Bhagavad Gita, Chapter 4, verses from 21 to 30. Having subdued his mind and body, and having given up all objects of enjoyment, free from craving, he who performs sheer bodily action, does not incur sin. The Karmayogi, who is contented with whatever is got unsought, is free from jealousy and has transcended all pairs of opposites like joy and grief, and is balanced in success and failure, is not bound by his action. All his actions get dissolved entirely, who is free from attachment and has no identification with the body and free from the feeling of mind, whose mind is established in the knowledge of self and who works merely for the sake of sacrifice. In the practice of seeing Brahma everywhere as a form of sacrifice, Brahma is the ladle, with which oblation is poured into the fire, etc. Brahma, again, is the oblation. Brahma is the fire, Brahma itself is the sacrificer, and so Brahma itself constitutes the act of pouring the oblation into the fire. And, finally, Brahma is the goal to be reached by him who is absorbed in Brahma as the act of such sacrifice. Other yogis duly offer sacrifice only in the form of worship to gods, while others perform sacrifice by offering the self by the self itself in the fire of Brahma. Others offer as sacrifice their senses of hearing etc. into the fires of self-discipline. Other yogis, again, offer sound and other objects of perception into the fires of the senses. Others sacrifice all the functions of their senses and the functions of the vital airs, prana, into the fire of yoga in the shape of self-control, kindled by wisdom. Some perform sacrifice with material possessions, some offer sacrifice in the shape of austerities, others sacrifice through the practice of yoga, while some striving souls, observing austere vows, perform sacrifice in the shape of wisdom through the study of sacred texts. Other yogis offer the act of exhalation into that of inhalation, even so, others the act of inhalation into that of exhalation. There are still others given to the practice of pranayama, breath control, who, having regulated their diet and controlled the processes of exhalation and inhalation both, pour their vital airs into the vital airs themselves. All these have their sins consumed away by sacrifice and understand the meaning of sacrificial worship. जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपानवायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।